आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं इसकी सजेशन हमें दी है सुधांशु ने और वीडियो का टाइटल है एक्सक्लूसिव ड्राइव ऑन मुंबई कोस्टल रोड इन ए नेक्सन ईवी। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें ऑटो कार इंडिया के चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ओह कितना अच्छा व्यू है ना वहाँ से। एडिटिंग कितनी कमाल की हुई है। कितना लंबा है ना। क्लियर। When Shapur has to pick you up for an event, you can be sure you're going to be late. Hello? Hey Roman, Where are you? I've already left and I'm in traffic. There's so much traffic here. It's bumper to bumper. I've been waiting for 20 minutes in the rain. Shapur's not here yet. And I think we're going to miss the start of the event. Can you fetch me? No, yeah, I can't turn around and come. If I do that, we'll both be late. Oh, thank God. He's come. Okay. I'll catch you. Okay, see you. You're late, Shapur. Man, this is not done. You've kept me waiting for 20 minutes and... Have you seen the traffic? Have you seen the traffic? It's all red. Yeah, so that's the reason it took so much time. I was a bit late, but let's see. Maybe Shapur, we can listen. No, hang on. Hanging Garden is blocked. Kemp's Corner is going to be choked, and Breach Candy, just always going to be traffic. I'm telling you, if we miss the social media stuff at this event, I'm not one to blame. We do pull back a bit while descending Hanging Gardens, and the instant torque of the electric motors is a massive relief. But we soon catch a couple of traffic lights and the ETA looks depressing again. It all seems quite impossible. Even lateral thinking is unlikely to work here. Well, maybe there's another way. Shapur, Let's just check. Here it is. wait. Where are you going? This is not the time to be funny. Okay, listen. I'm getting out of the car. I'm going to a cab because I need to be on stage right now. Shapur, enough. Relax. Let me make a phone call. Give me 2 seconds. Just let me make a phone call. Hi. This is Shapur. Hi. Yeah. Remember that recce we were talking about? Yes. Look, I'm at the start here. Is it possible to do it today? It will be convenient. It's an Exxon EV, electric vehicle. Yes. Exactly. Thank you. Why do you always act like a grandmother? Why are we taking you? I'm trying to take you by a shortcut. I'm trying to make you reach on time. Just relax. What are you going to do? Drive through the sea? Shapur, being Shapur, wanted to do two things at once. A recce for the coastal road being built in Mumbai and get me there on time. All right, Rohan, this should be interesting. This should be fun. Shapur, what are you doing? Have you gone mad? This is a construction site. Actually, yeah, I suppose you are mad. Come on. Do you want to reach there in time or not? Then I noticed something that I'm sure will pique Ruman's interest. Rohan, look to your left. That section we've just passed. You know what that is? That's the tunnel coming from Marine Drive. It's going to be an undersea tunnel. Wait, you said undersea tunnel? Exactly. It would go From where? under Chowpatty. You branch off from Marine Drive, under the hill, and come out on the other side here. The pair of tunnels will be 2 kilometers long each, and there will be several cross tunnels for safety.
And this section, we'll be flying through at around 80 or 100, 4 lanes on each side. Be super. Wow, are you serious? Yeah. Can we do some of that now? Just taken a cab. It's unreal. We're doing some serious off-roading in South Mumbai. And I must say the Nexon is taking it pretty well. Yeah, but does this road even go anywhere, or are we going to go for a swim? I've seen a little bit of it, so hopefully we should be okay. I mean, we're not completely out of the woods. On the right is we'll be approaching Breach Candy, and there's where you'll have the first big circular exchange. It's called the Amarsan's Exchange because of the Amarsan Garden, and most people know that as Breach Candy. The Amarsan interchange located at Breach Candy will allow local residents to get on and off from the roads seamlessly. And the coastal road will also shift traffic away from the otherwise congested and arterial Pedder Road. So pretty good, we're moving pretty well, and as you can see, South Bombay on our right is going past. Now I know this road isn't fully finished. They just remind me to stop and take some pictures because we're supposed to be on a recce. Yeah, Shapur, thank you for the lecture, but I don't think this road is taking us anywhere right now. What's good is that the Nexon EV seems right at home here. There's enough clearance and the suspension is comfortable and feels seriously tough, like it can take a real hammering. I think we might just be making up a good amount of time on Rahul because, yeah, like I told you, more open section and we can do a bit more speed. Now Ruman is obsessed with Google Maps. In fact, I'm sure he even checks it on the way to the Panwala. Let me see what the map says actually, hang on. The map says we're in the sea. What? Show me. I have to stop. Yeah, we're literally in the middle of nowhere. Okay, let me call Rahul now, see where he is. ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में है. Hello? Hey, where are you? I am still at the end of Pedder Road, approaching Haji Ali. Oh, really? Where is he? He's still at Pedder Road. All right, I hope you make it there on time. See you. Bye. कितना अच्छा view है. That. What's that? That's Haji Ali already? Haji Ali. Yeah, we are Haji Ali. I think we crazy. might be ahead of him. We are. Okay, so this is Haji Ali coming up. Are we actually doing the road layout? Because these corners look very exciting. Not really, because you'd be going much quicker and it'll be much more straight lines. This is where the Haji Ali interchange will be. It's probably one of the biggest interchanges in India. The Haji Ali interchange will have 8 arms and has roads and lanes going every which way. There are bridges, elevated sections, on-ramps and exit ramps everywhere. Good signage and early information will be essential to a good traffic flow. So Ruman, we've got Haji Ali on our left, and on our right, a little back there is Mahalakshmi. You think we have time for a quick visit? You know what? I never believed that we would one day be this close to Haji Ali, but in a car. Okay, I think we better carry on. Yeah, I was just trying to put your leg. Very comfortable है. Now, can you please just concentrate on the road and take us there? It's just doing that. Oh, this is crazy, man. And sure enough, once the horizons open up, we can do much higher speeds. So, Ruman, we are the first to get a preview of this road, and what would have taken you around 35 or 40 minutes will now take you much less, I promise you.
The Worli interchange with 6 arms is the final one before you get onto the Sea Link. And this will also have a long bridge to connect it, spanning the current entry of the Sea Link. So you're saying we might be there on time? You know what? This thing is going to change the face of the city. It's pretty incredible, don't you think? Yes, and if this really is where I think it is, then I think you must know what it's time for. You want to call Rahul? It's time to brag. Check where he is. Hello? Rahul, where are you, man? Hey, I think I've just cleared the worst bit and now I'm getting closer to Worli. Yeah, I'm at the Sea Link, in fact. What? Almost there. How? Yeah, you know, Shapur, when you sort of put the pressure on him, he can work wonders sometimes. All right, we'll wait for you. Of course, we didn't tell him we'd taken the coastal road. We'll leave that for a bit later. All right, Roman. That's our exit. I honestly can't believe we pulled this off. It was just, I don't know, I just thought we could do it and I called up and luckily he said yes. And I think Rahul's behind us. Oh, this is crazy. And we're back in traffic. Rahul, where are you? The coastal road will make when it's ready in 2023. Modern cars need new age roads, and that's just what the coastal road will deliver. Built by BMC that runs the city of Mumbai, the road has been designed in such a way that there's not even one signal in the 10.58 kilometers. And the interchanges themselves are so long, they stretch for 15.6 kilometers alone, more than the road itself. The scale of the project is vast. Concrete and bitumen apart, 80,000 metric tons of steel will be used. Just think about that. Likely to positively impact the quality of life in Mumbai for decades, the new road will offer a more relaxed and faster commute on the one hand and significantly lower fuel consumption, congestion and pollution levels on the other. Welcome to the 21st century, Mumbai. Hope you like it. बहुत अच्छा लगा भाई बात करें अगर आज इस वीडियो की तो मेरा ख्याल है कि टाटा नेक्सन जो है इसकी जो है ना इससे अच्छी यानी कि क्वालिटी और एक परफॉर्मेंस दिखाने के लिए इससे अच्छी वीडियो कोई नहीं मिलेगी। बिल्कुल, मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि किस तरीके से एक कार की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इस तरह की जगह पर उसको चलाकर, जो कि हम कह सकते हैं कि ऑफ रोड है और वहां पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, सब काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, तो ये दिखाया जा रहा है कि वो कितनी अच्छे से वहां पर भी काम कर सकती है। बिल्कुल, यानी कि इन शॉर्ट अगर देखा जाए ना तो हम जब किसी ऐसी जगह पर जाते हैं ना, यानी कि जो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया होता है वहां पर जो है आपको रोड इसी तरह के ज्यादातर मिलते हैं, यानी कि खराब रोड आपको देखने को मिलता है, तो वहां पे गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि मोस्टली पता क्या होता है गाड़ी क्योंकि बार बार आप उसकी गियर शिफ्ट करते हैं ना तो वो ऐसे जैसे थकना शुरू हो जाती है गाड़ी। तो ये जो एक परफॉर्मेंस दिखाई है ना मुझे बड़ी अच्छी लगी है, जिस तरह वो पूरा रास्ता क्रॉस करके आई है। और फिर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं भाई, वाकई और एक कमाल का प्रोजेक्ट है, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, स्पेशली जब वीडियो स्टार्ट होती है और जो एडिटिंग की हुई है खूबसूरत लग रहा है इतना ज्यादा। और मौसम भी बहुत प्यारा है वहां का कि उस टाइम पर लाइक जो एक समंदर के साथ साथ जो हम कहेंगे कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट है वो इतना खूबसूरत लग रहा है। और मैं हैरान हूँ, मतलब 10 किलोमीटर तक कोई आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, तकरीबन पौने 11 किलोमीटर पौने 11 किलोमीटर तक कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। अच्छा वैसे क्या नाम लेते हैं, मैं बात करूँ ना इसकी स्टार्टिंग जो ने वीडियो स्टार्ट की है तो मुझे ना टाइम लैप्स वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं, एक अलग सी वाइब्स जो है ना वो देते हैं। तो नो डाउट भाई अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर तक जो है कोई सिग्नल ना होना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
के हम शहरों में बात करें तो कभी कहीं से रोड आ रही है, कभी कहीं से रोड आ रही है, तो सिग्नल फ्री करना रोड को, फिर सिग्नल फ्री करके इस चीज का ध्यान रखना कि यार यहाँ पे रश ना लगे, ट्रैफिक जो है वो चलती ही रहे हर टाइम, ये भी एक बहुत बड़ी चीज फ्लो है। रहना चाहिए बिल्कुल। वो एक। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वीडियो में हम लोग गाड़ी की पहले तारीफ करें या प्रोजेक्ट की? मैं भी यही सोच रहा था। जो मतलब कि साइड बाय साइड चल रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी जैसे प्रोजेक्ट, आई थिंक पहले हम प्रोजेक्ट की बात कर लें, नहीं पहले गाड़ी की बात कर लेते हैं। फाइन। गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि उसकी मार्केट बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगी, क्योंकि काफी ज्यादा एक ट्रेंड अब जो हमें चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, और आई थिंक काफी सारी कंपनीज भी अब इस कंपटीशन में आ रही हैं। यार अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनी जो है वो अब कोशिश कर रही हैं कि हम जो है ना मार्केट को भी और कस्टमर्स को भी इस साइड पर लेके आए कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं वो उसे यानी कि यूज करें, उसकी तरफ आए। मैं अगर टाटा की बात करूं तो मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि टाटा ने जो है काफी ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन जो है जहाँ पे आप गाड़ियां चार्ज कर सकते हैं वो भी इंस्टॉल किए हैं, ताकि आप जो है गाड़ियां अगर खरीदते हैं तो इजीली आप उसे चार्ज कर सके। अब ये मुझे नहीं पता कि ये खबर कितनी हद तक सच्ची है, क्योंकि भाई मैंने सोशल मीडिया पर ही से पढ़ा था। लेकिन इसके साथ साथ जो जैसे कि मौजूद ने बोला कि बहुत सारे कस्टमर्स को और जो मार्केट है उसको ग्रैब करने के लिए अब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये चाहेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करें, और उसके साथ ये भी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं पर कि जी इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, कितना अच्छे से काम कर सकती है। तो आज की वीडियो का जो पर्पस था, मुझे लगा कि ना कहीं पर उसका रीजन बनाने का भी यही था कि ये चीज दिखाई जाए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो बहुत अच्छे से काम में आ सकती हैं। लाइक हम लोगों में से ज्यादातर लोग अभी भी देखें तो ज्यादातर हम लोग पेट्रोल वाली गाड़ियों पर रिलाई करते हैं, बट आने वाले टाइम में बहुत सारी कंट्रीज को लेकर अगर बात करें तो बाय 2050 बाय 2060 वो इन सबको मतलब कार्बन फ्री एक कंट्री अपने बनाना चाहते हैं। तो आई थिंक वो इसी तरीके से पॉसिबल होगा जब जो मैन्युफैक्चरर है उस पर एक ट्रस्ट रहेगा। और टाटा की अगर हम बात करें तो टाटा के ऊपर तो लोगों को वैसे ही बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, उनका एक नाम है। अब मैं खैर यहाँ पर आ जाती हूँ प्रोजेक्ट की तरफ। मैं पहले थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। आप 2050 2060 तो बहुत दूर की बात कर रही है ना। मैं तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, सऊदी अरब और चाइना जो है वो प्रॉपर ऐसे सिटीज बना रहे हैं अब जहां पर जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही चलेंगी। आप जो है उन शहरों में ये पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ियां लेकर एंटर नहीं हो सकते। 2050 और 2060 ही सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम इसको बिल्कुल कार्बन फ्री बना देंगे सऊदीया को ना। लेकिन मैं वो प्रॉपर सिटी की बात कर रहा हूँ, अभी वो सेटअप कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है जल्दी हो जाएगा। टाइम तो लगेगा ना, ऐसा थोड़ी ना होता कि रातों रात हर चीज हो जाती है। अभी डिफरेंट, अभी जैसे इंडिया भी इसी एक दौड़ में है कि अब हम लोग को कार्बन फ्री करना है, और क्योंकि मेरे ख्याल में ये अच्छा भी है क्योंकि एनवायरनमेंट के लिहाज से देखा जाए तो ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अभी देखो यहाँ पर ठंड है लाहौर में, लेकिन लाहौर में अगर देखा जाए कुछ अरसे पहले की, मैं कुछ सालों पहले की बात करूं तो 0 और 1 का टेम्परेचर भी हम लोगों ने देखा है। बट अभी का जो टेम्परेचर सबसे कम मैं देखती हूँ ना वो मैं 4 तक देख लेती हूँ। मैं 2 तक देखा हुआ है। कब? अभी ये थोड़े दिन पहले था, 2 पे गया था, 2 आया, अभी 4 तक पता नहीं, वो बता रहा था वेदर के भाई 2 होगा। अच्छा, तो पता नहीं, वैसे मैंने अभी तक 4 का देखा है, इससे भी कम नहीं हुआ। बट ये है कि अगर एक नंबर का भी फर्क पड़ता है तो वो काफी ज्यादा एक फर्क है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि अगर लोग अभी से इस साइड पर आना शुरू हो गए हैं। और मौजम, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मैं प्रोजेक्ट नहीं, इसके बारे में नहीं, हम प्रोजेक्ट की बात करना चाहूंगा। प्रोजेक्ट जो है वाकई बहुत खूबसूरत मुझे लगा है, और जिस तरह उसमें मॉडिफिकेशन की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि समंदर में थोड़ा यानी कि जमीन की थोड़ी सी बढ़ोतरी भी की गई है, और उसके अलावा जो है जिस तरह पहाड़ों को जो है वो करके जो है उनमें सुरंगें बनाई जा रही हैं। मैं टनल की ही यहाँ पर बात करना चाहती हूँ। मुझे टनल वाला बहुत खूबसूरत लगा है। आई मीन कमाल का एक ये प्रोजेक्ट है, और जो हम लोग इसका एक हम कहिए कि एनिमेटेड फॉर्म में देख रहे थे वो तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिस तरह से मुझे तो ऐसा लग रहा था बहुत ही सीरियसली एक हम देखते हैं ना बहुत डेवलप्ड मॉडर्न वो वाली एक वाइब आ रही थी। लेकिन एक चीज मेरे जहन में आती है कि मतलब जो मुंबई की हम लोग पहले वो रोड्स वगैरह देखते हैं, 1-2 वीडियोस जो हम लोगों ने देखी हैं, तो मतलब मैं ये बात जरूर सोचती थी कि वहां पर इतने सारे लोग रहते हैं और काफी ज्यादा वहां पर इंडस्ट्रीज भी हैं,
लेकिन उसके बावजूद जो रोड्स हैं वो बहुत कंजेस्टेड नजर आती थी। हाँ। मतलब उस तरीके जितना बड़ा शहर है उतनी बड़ी रोड्स नजर नहीं आती थी। तो मतलब एक्सटेंड अब ये प्रोजेक्ट हो रहे हैं कि लाइक इस तरह से रोड्स बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि पहले क्यों नहीं इस तरफ पर तवज्जो आई, क्योंकि लोग काफी ज्यादा डिफरेंट सिटीज से वहां पर आकर रहते हैं। यार मेरा शायद यहाँ पे ये ख्याल है कि पहले की अगर बात करें तो आबादी इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती होगी। अब क्योंकि देखा जाए तो अब तो आबादी बहुत ज्यादा है। अब पहले अगर आप कितनी देर पहले की बात कर रहे हैं? मैं अगर बात को जब नया नया मुंबई पूरा सेटल हेलो, किया गया था, मतलब मौसम ठीक है, में नए-नए उसके मुंबई की नहीं बात नहीं करी यार। मेरी बात सुने, देखें अगर मुंबई की बात करें ना, मुंबई अब जो है वो इस जो नवी मुंबई वाली साइड जो है, जो समंदर से दूसरी साइड भी है, अगर आप उधर देखें तो अब उस साइड पे एक्सटेंड होता जा रहा है। पहले जो है ये जिस आइलैंड पे था यहाँ पे हमें ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन फिर आबादी का भी तो हिसाब होता है ना कि क्या नाम लेते हैं, उन्होंने कितनी जगह छोड़ी हुई है वहां पर जो पहले से गलियां बनी हुई हैं, सड़कें बनी हुई हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो वही चलता आ रहा है। तो अब आकर जो नया बस रहा है वहां पर अगर हम देखें तो वहां पे हमें जो है एक्सटेंशन देखने को मिलती है, भाई बड़े बड़े रोड देखने को मिलते हैं। अब ये मेरे से एग्री नहीं करेंगी। नहीं, मैं ये बात सोच रही हूँ, मेरा क्वेश्चन कुछ और था बट एनीवे मौसम कुछ और जवाब दे रहा है। लेकिन खैर ये तो थी हमारी आज वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।